Hello dear students, welcome in this YouTube channel. So students, today we will try to solve this case study based question from the chapter number 1, Chemical Reactions and Equations. Okay, so let's read this paragraph. When a more reactive element displaces a less reactive element from its compound, it is called a displacement reaction. Okay, that we have understood. This is a displacement reaction. The reaction is of two types. One is a single displacement and double displacement. If the one metal is there and that displaces the another metal from its salt solution, then it is the single displacement. And if there is the exchange of ions, okay, two salt solutions are there and there is a exchange of ions, then it's a double displacement reaction. Here the examples are given of both type of displacement reactions. Iron being more reactive than copper displaces copper from an aqueous solution of copper sulfate. This is an example of single displacement reaction. Okay, iron plus copper sulfate, that is CuSO4. Then iron is more reactive than that of copper. It will displace copper. Then it will form FeSO4 plus Cu. So it is a single displacement reaction. On adding silver nitrate, what is silver nitrate? AgNO3. Okay, Ag, one positive, NO3 one negative, so it will be AgNO3 plus silver nitrate solution to sodium bromide. Sodium Na positive and bromide Br negative, so it is NaBr, gives yellow PPT of silver bromide. ठीक है, silver bromide, Ag1 positive and Br 1 negative, so it is AgBr, and solution of sodium nitrate, Na positive, NO3 1 negative, so it is NaNO3. Okay, and here the PPT, yellow color PPT of silver bromide will form. So in the double displacement reaction, if the precipitate will form, what are precipitates? That are insoluble substance. Okay, and that will form, that type of reaction, double displacement reaction, is called precipitation reaction. Okay, ये हमने किया हुआ चैप्टर 1 में. So this much information is given in this paragraph. So let's do the first question. When dilute sulfuric acid is added to pieces of iron sulfide, hydrogen sulfide gas is produced and soluble ferrous sulfate is formed. The type of chemical reaction involved is dilute sulfuric acid, okay, dilute sulfuric acid plus iron sulfide, Fe2 positive, sulfide S2 negative, so it is FeS2, 2 will be cancelled, gives hydrogen sulfide, that is H2S, plus soluble ferrous sulfate, that is FeSO4. Okay, now which type of reaction is this? Decomposition reaction. Decomposition means there is the breaking down. Okay, the hint given by decomposition reaction is, बेटे उसकी जो डेफिनेशन है उसी में हिंट दिया हुआ है. द सिंगल रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट होता है वो ब्रेक डाउन होकर 2 और मोर प्रोडक्ट्स बनाता है. ठीक है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 और मोर रिएक्टेंट्स होते हैं बट 1 प्रोडक्ट होता है, 1 सिंगल प्रोडक्ट शुड बी देयर. ओके. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेटे एक मेटल होती है और दूसरा मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, जैसे हमने अभी आयरन और कॉपर सल्फेट वाला किया था. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2 सॉल्ट सॉल्यूशंस आर गिवन. ठीक है, हमें 2 सॉल्ट्स दिए होते हैं, अंडरस्टूड, और वहां पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है. ठीक है, सो दैट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट. See the second question. Following reaction is used for the preparation of oxygen gas in the laboratory. This is potassium chlorate. Potassium chlorate. Okay. Heat किया जाता है in the presence of any catalyst.
पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनती है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब आपको रिएक्शन देख के पता चल रहा होगा, सिंगल रिएक्टेंट इज देयर, ठीक है, 2 और मोर प्रोडक्ट्स में वो टूट रहा है, तो दैट मीन्स इट्स अ डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो हो रही है, चीज टूट रही है, पर टूटने के लिए इसको एनर्जी दी जा रही है, किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो जिसमें एनर्जी एब्सॉर्ब की जाती है, मतलब दी जाती है, ठीक है, वो कौन सा रिएक्शन होता है? एंडोथर्मिक इन नेचर। सो कौन सी ऑप्शन हमारी ठीक बन रही है? इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर। सो हमारी फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, दैट इज डिकम्पोजिशन है, एक रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट्स हैं, और एंडोथर्मिक है क्योंकि इसमें एनर्जी यूज हो रही है। जब हम एरो के ऊपर हीट लिखा है या एनर्जी लिखा है, फोटो लिखा है, सॉरी फोटोलिटिक मीन्स लाइट लिखा है या इलेक्ट्रिसिटी लिखा है, तो दैट मीन्स इन दिस द एनर्जी इज एब्सॉर्बिंग। ओके, इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? नो, तब तो यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट होना था। इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकम्पेनिड बाय द रिलीज ऑफ हीट? नो, यहाँ पर हीट रिलीज नहीं हो रहा है। फिर अगर हीट रिलीज हो रही है तो वी विल राइट हेयर एट द प्रोडक्ट साइड पे हम लिखते हैं। इट इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन? नो, ठीक है, फोटोकेमिकल मीन्स यहाँ पे कोई लाइट एनर्जी यूज हो रही है, नहीं। और एक्सोथर्मिक है? नो, एक्सोथर्मिक मीन्स रिलीज ऑफ हीट। ओके, सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन, what are the products formed in the double displacement reaction discussed below? ठीक है, क्या डबल डिस्प्लेसमेंट दिया है? बेरियम क्लोराइड कलरलेस सोल्यूशन है, सोडियम सल्फेट कलरलेस सोल्यूशन है, ठीक है। तो इन दोनों को क्या कर देंगे? मिक्स कर देंगे, ठीक है। दिस इज योर एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में रिएक्शन दी हुई है दिस वन। नाउ नेक्स्ट पेज पे बेटे ये डायग्राम बना हुआ है, देन दे आर मिक्सिंग बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। सो फॉर्मूलाज तो आपको इधर ही दिए हुए हैं, बेरियम क्लोराइड BaCl2 एंड सोडियम सल्फेट Na2SO4। ओके, Ba2 पॉजिटिव होता है, Cl1 नेगेटिव है, तो BaCl2 बन गया। Na पॉजिटिव होता है, SO4 नेगेटिव होता है, तो बन गया Na2SO4। नाउ एक्सचेंज ऑफ आइंस कर दो, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव क्या बन गया? 2 कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी BaSO4 प्लस Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव क्या बन गया? NaCl। सो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स? बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। सो चेक कर लो यहाँ ऑप्शन में कौन सी है, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, सो इट्स A। नाउ सी द फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स सॉल्ट? ठीक है, कौन सी एलिमेंट करेगा? जो एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? फ्रॉम द रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करनी पड़ेगी, एंड वी हैव डन द रिएक्टिविटी सीरीज इन एन ईजी वे। ओके, तो हम एल्यूमिनियम तक अगर इसको लिखें तो क्या किया है हमने? केदारनाथ का माली आलू, सो दिस इज एल्यूमिनियम। अब देख लो, एल्यूमिनियम से ऊपर की अगर कोई मेटल दिया है तो दैट मीन्स वो मोर रिएक्टिव है देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम, एंड इट विल डिस्प्लेस एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। सो विच वन इज देयर? जिंक है, आयरन, निकल, कैल्शियम। विच वन इज देयर? दैट इज कैल्शियम है। तो कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम, सो ये इसको डिस्प्लेस कर देगी। सी द फिफ्थ क्वेश्चन, सिलेक्ट द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपको हिंट मालूम है, डबल डिस्प्लेसमेंट का एक्सचेंज ऑफ आइंस होते हैं, लेकिन 2 सॉल्ट सॉल्यूशंस होते हैं रिएक्टेंट साइड पे, ठीक है। ये देखोगे तो ये कौन सी है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। दिस वन, 2 रिएक्टेंट्स हैं, कंबाइन करके 1 प्रोडक्ट बना रहे हैं, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ लिखते दिस वन सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ओके, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, दिस वन कॉम्बिनेशन, एंड इन दिस 2 सॉल्ट सॉल्यूशंस एक्सचेंज ऑफ आइन हो रहा है, तो क्या बनेगा? दिस वन, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। और लास्ट वाली क्या होगी? लास्ट वाली तो ये हमने अभी पीछे की थी, इट्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।